Hi friends, today we will going to discuss about the art of science writing. So this is a very important topic whether you are a research scholar or PG student, PhD student, or you are a faculty member. So this is one of the very important topic which is quite relevant these days. So art of science writing, see science writing is very important because if you are doing good science, it is you have to publish that particular science. You have to publish or you have to show your research. Until you are not showing your research to the general public or to your peers, it will not be considered as a good research. So again, research, doing research is another thing, and communicating research is a very different thing, and the communication of research is an art. So art of science writing is a very important topic. So today we will discuss about that only, that how we can do, how we can write the science and how to publish, what kind of journals are there, how we can publish in good journal, and so on and so forth. So as we all know that these days, they are the electronic age, and we all know there is a saying that publish or perish, which is quite common in academia as well as in other scientific world. So science writing requires a very specific degree of skill and proficiency. So whether whether you discover anything, you find a new thing, you do any kind of invention, so you have to communicate that particular invention or innovation to the जनरल पब्लिक और टू योर पीयर्स. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ योर वर्क, राइट. सो व्हाट काउंट मोस्ट इज़ योर सॉलिड वर्क, and we have to always focus towards the quality, not towards the quantity. And it has been, it is widely seen that if you are focusing more toward the quantity, then you are somehow compromising the quality. So it is very important to focus more on the quality aspect rather than focusing on the quantity aspect. कभी भी ये मत सोचिए कि हमको जो है ना 10-20 पेपर पब्लिश करने हैं साल के अंदर, ऐसा ये दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग. But what is good is to publish very specifically. Like if you are publishing one good paper in a year, that is much better than publishing 10, not high quality papers. So always focus on your quality. Good quality is always, superior to that of the quantity. And these days the people, scientists, professors, they are doing multiple things. So this was a paper which was cited, which shows a professor like an octopus in 2018, that you can see how the professor is dealing or scientist is dealing with multiple things, whether right, either they are collaborating with other people, they are guiding so many students. So these kind of people, they can do multiple work, and in that the outcome of the work is good quality and the quantity as well. Okay, so we have to focus rather, at what stage you are, that's completely depend on you, that how, whether you are focusing more on the quality, and you have to make sure that you are in in addition to maintaining the quality, you can also increase the quantity. But it is always recommendable that you should focus more towards the quality than the quantity aspect. This was a data which was, again, it was mentioned in the nature itself, that there are many hyper proliferative authors are there. Like in 2002 there is only, very limited amount of authors are there who were publishing more paper, like more than 72 papers an year. Okay, and in 2008 there was 39, in 26 it is 81, and in 2016, sorry, 2026, you can find, I think it is more than the double of that. So these are different components of a manuscript, how we can write, how you, when you are going for the communication of the paper, when you complete your research work, then there are multiple aspect of your paper. Okay, whether it is, it will start from the abstract title, then it will be abstract is there. Okay, after the abstract there is uh, introduction is there, then there will be material and methods, then there will be results, discussion of the results, then the acknowledgement is there, the conclusion is there, then acknowledgement is there, after that the references are there, and finally that figures and tables are there. Sometimes you can find that the figures and table, the position of the figure and table can be varied. Sometimes it is within the manuscript, sometimes it is at the last of the manuscript. So you have to design your work accordingly. And if you are working in a review paper, then again the things may be different. Okay, in that you have to uh,
make the table of component based upon the literature or systemic review you are publishing, or you are publishing a narrative review or a scope review, whatever kind of review you are publishing, you have to work accordingly. This is a basic peer review process. So you will submit a manuscript, then you will submit the manuscript to the journal. It will go to the chief editor or the editor. Then it will be gone to the different peer. So they are generally known as reviewers. And then once the reviewer will do the, they will give the comments on your manuscript. It will be come back to the to you as an author, and then you will address the comment, and finally you will send it again. Again, these reviewer will assess your work, and finally it will go for the acceptance, and later on it will be published. So how you will judge the manuscript, okay, with the when you are submitting in a high rank journal? So the most important thing is the originality. What the editor will see, that whether your work is original or not, okay, what kind of novelty is present in there. Then the second thing is the rigorous methodology. Your methodology should be very, very, it should be very rigorous. You should come to a substantial conclusion out of that. And finally, what kind of impact on the field of your study. So these are some of the important component which is seen by the editor or the general staff while doing. And this is a very common picture. I have also taken it from somewhere, that this is the basic path for the manuscript. So author will submit the manuscript, and there is editor in chief. So everybody is there. Then reviewer one, reviewer two, reviewer three, and so on. And there are so many people who are there to, it has to go through a very, obstacle filled road, and finally it will get accepted if everybody will convince out of it. So sometime it also happened that many journals, they take a lot of time, and you will even don't get the reviewers response in that, okay. And sometimes you can also find that आपका आपने पेपर सबमिट किया और it will be rejected outwardly, okay. आपने भेजा और भेजते ही अगले दिन आपके पास रिजेक्शन आ गया, तो उसके भी कई सारे रीजंस होते हैं. And this is how it will work. So you submit the manuscript, it will get rejected, then you revise it again, then again rejection will be there, again third revision will be there, and finally your manuscript will be accepted. So one of the most important tasks while sending a manuscript is the destination journal. So where you are submitting your manuscript, it is very, very important, okay. So there are generally two ways, whether you are once you can identify the journal at the initial time when you are writing the manuscript, or you can identify the journal after the completion of the manuscript. So both of the both of these type of मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड. तो कुछ लोग शुरू में ही अब जर्नल डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस जर्नल में भेजना है, और कुछ लोग लिखने के बाद पूरा कंप्लीट करने के बाद डिसाइड करते हैं कि अब हमको इस जर्नल में भेजना है, हमारा जो पेपर है वो इस क्वालिटी का है. तो कोई भी आप जो आपका मेथड है वो अडॉप्ट कर सकते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कैसे आप कोई भी सूटेबल जर्नल अपने काम के लिए आइडेंटिफाई करें. सो देर आर एन नंबर ऑफ journals, okay, so many thousands of journals are there. So you have to identify the journal based upon your work, which is very, very important, okay. So it's like finding a needle in a haystack. So there are n number of journals. So you can see it is around over 35,000 journals are there in this category. So you have to first you have to identify whether I'm submitting a paper in a right journal or not. और उसमें एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रेडेटरी जर्नल्स एज वेल, विच आर जनरली दे आर द बोकस काइंड ऑफ जर्नल. और इसमें बहुत जो यंग स्कॉलर्स होते हैं, जिन लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं होता, दे कम इन टू द ट्रैप ऑफ दीज काइंड ऑफ जर्नल्स. So how to identify predatory journal, okay. So they will send you different call of papers, okay. They will their general scope is too wide. आप देखेंगे कि वो मटेरियल के भी पेपर ले रहा है, मेडिसिन के भी ले रहा है, फार्मेसी के भी ले रहा है, ओके. यू कैन फाइंड कि उसमें सोशल साइंस के भी ले रहा है कभी कभी कोई. उसमें आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज और हिडन चार्जेस होंगे, आपको पता नहीं चलेगा. जैसे ही आपका पेपर एक्सेप्ट होगा, देन दे विल टेल यू कि ओके नाउ यू हैव टू गिव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी. सो इंडेक्सिंग नहीं होगी उसकी, जो सबसे बेसिक है, दैट इज दे आर नॉट इंडेक्स प्रॉपरली, ओके. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई. जैसे आप ये देखें, कई बार ये हमारे पास इस तरीके के मैसेज आते हैं कि बेस्ड ऑन योर प्रीवियस पेपर आप ये इस जर्नल में आप सबमिट कर दें, इसका जो शुरू का वॉल्यूम चल रहा है. तो और उसमें आप दे विल इंश्योर यू दैट
they will complete the peer review process within 3 to 4 weeks. So whenever you will see like that, in good journal, never it will be written like that कि हम इतनी जल्दी आपका peer review complete कर लेंगे और उस इतनी जल्दी आपका 2 हफ्ते में 1 महीने में पेपर पब्लिश हो जाएगा. So it is never written in the peer review journal, right? Similarly, ये आप देखिए इसमें भी ऐसे लिखा है, it will be processed and published as early as possible. Okay, so this will be never written in any of the good quality journal or index journal. बट देर आर सर्टेन जेनविन पेपर्स, जेनविन जर्नल्स ऑल्सो. तो कई बार जब आप थोड़ा सा आपका रेपुटेशन ठीक हो जाता है तो आपको आपके पास कई बार इस तरीके से जो अच्छे जर्नल्स हैं उनसे भी कॉल आती है. तो उसमें दे विल क्लियरली मेंशन अबाउट द आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज कि अगर कोई आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस हैं तो वो आपको बता देंगे. और इसमें कहीं पे ऐसा नहीं लिखा होगा कि ये 1 महीने में छाप देगा, 1 दिन में छाप देगा, इतनी जल्दी छाप देगा. तो नेवर इट इज़ रिटन लाइक दैट. ओके, सो this is also be important, ki you should understand that it's a kind of marathon, it's not a sprint. So whether you work hard, it is quite possible कि आपका पेपर उसके बाद भी रिजेक्ट हो जाए. So don't be disheartened and you have to try and you have to find why it is happening and then you have to correct the things. Here are some of the key points what you have to see while finding the journal. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एम एंड स्कोप ऑफ द जर्नल. सो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके जर्नल का एम या स्कोप क्या है. देन यू हैव टू रीड द गाइड फॉर द ऑथर्स. कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ अच्छे जर्नल्स होते हैं, दे आर दे टेक ओनली बेस्ड ऑन इन्विटेशन. तो कई बार आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट किसी ऐसे जर्नल में भेजते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि यहाँ पे तो केवल इन्विटेशन से होता है और आपका पेपर रिजेक्ट हो जाता है. सो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आपके पास फंडिंग है, आपके पास इंस्टीट्यूट के पास फंडिंग है, तो आप ओपन एक्सेस भी पब्लिश कर सकते हैं. और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आप एक पेपर को एक से ज़्यादा जर्नल में कम्युनिकेट नहीं कर सकते. सो यू हैव टू सबमिट योर पेपर ओनली वन जर्नल एट अ टाइम. ओके, ये आप राइटिंग में भी लिख के देते हैं उन्हें. और कई बार इट इज़ ऑल्सो वेरी बेटर, वेरी गुड कि इफ़ यू विल चेक द लेटेस्ट इशू ऑफ दैट पर्टिकुलर जर्नल और आप उसमें देख सकते हैं कि ये कब भेजा, कब एक्सेप्ट हुआ, कब पब्लिश हुआ. तो उससे आपको एक टाइमलाइन का आइडिया लग जाएगा कि कितना टाइम ले रहा है वो जर्नल किसी भी पेपर को पब्लिश करने में. देर आर मैनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स एज वेल, तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं. लाइक जनरल फाइंडर्स यू कैन यूज़. ओके, सो जनरल फाइंडर, दिस इज द एल्सेवियर जनरल फाइंडर. ये लिंक इसका मैंने यहाँ पे दिया है. इस पर आप क्लिक करेंगे, आप अपना एब्स्ट्रैक्ट डालेंगे. सो इट विल लुक लाइक दिस यू कैन सी. So you can just write your abstract here. Okay, or if you can title also, you can write your general title. Like let's say if I write ethnopharmacology. Okay, you just write the title and then you will click here. और ये आपको इससे रिलेटेड जितने भी जर्नल्स होंगे वो आपको दिखा देगा. ओके, अभी आपको यहाँ पे ये भी बता रहा है कि इसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है. आपको एक फर्स्ट डिसीजन का डेट भी बता दे रहा है. ओपन एक्सेस है, सब्सक्रिप्शन है, ये भी बता दे रहा है. अगर ओपन एक्सेस, केवल ओपन एक्सेस होगा तो वहाँ पे आपको पैसे, जो ओपन एक्सेस चार्जेस होंगे वो देने पड़ेंगे. अगर आपका सब्सक्रिप्शन और ओपन एक्सेस दोनों होगा तो आपके पास ये हाइब्रिड मॉडल इसको कहते हैं. तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप ओपन एक्सेस पब्लिश करें या सब्सक्रिप्शन बेस पब्लिश करें. तो सब्सक्रिप्शन बेस में आपको ऑथर को कोई चार्ज नहीं देना पड़ता. तो ये देखिए, ये अलग अलग तरीके के जर्नल्स हैं. तो ये उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी जर्नल्स हैं वो आपको दिखा देगा एक बार में, राइट. सो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. ऐसे ही किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे अगर आप देखें तो स्प्रिंगर जनरल फाइंडर होगा, ऐसे ही उस पर भी आप चेक कर सकते हैं. तो जितने भी अलग अलग पब्लिशर्स हैं उनमें भी आप जो है अपना ये डाल सकते हैं, टाइटल वगैरह डाल के, एब्स्ट्रैक्ट डाल के सर्च कर सकते हैं. तो इससे आपको एक डिटेल आइडिया आ जाएगा कि किस कौन कौन से जर्नल हमारे उस कैटेगरी में अवेलेबल हैं, राइट. तो इसमें जनरली ये देखिए, अब यहाँ पे आपके सारे जर्नल्स आ गए. कितना इम्पैक्ट फैक्टर है, कितने हाइब्रिड मॉडल है. ये जैसे ओपन एक्सेस है ओनली, तो ओपन एक्सेस का मतलब है कि केवल ये ओपन एक्सेस ही पब्लिश करेगा. इसका मतलब ये जो ऑथर है उससे पैसे लेगा. ओके, ओपन एक्सेस चार्जेस लेगा. बाकी जैसे ये आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड मॉडल हैं, तो इनमें क्या होगा, ये जहाँ जहाँ पे भी हाइब्रिड मॉडल होंगे तो इनके पास ओपन एक्सेस और सब्सक्रिप्शन दोनों ही है. तो यहाँ पे आप पब्लिश कर सकते हैं. तो इस तरीके से आपके पास जितने भी पब्लिशर्स हैं उनके आप जनरल फाइंडर्स को यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वे. सो दिस इज़ लाइक स्प्रिंगर जनरल सजेस्टर. ये उसका कुछ एग्जांपल है कैसे आप इसमें देख सकते हो. एक्सेप्टेंस रेट देख के भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना एक्सेप्टेंस रेट है, क्या आपका मनुस्क्रिप्ट उसमें पब्लिश होगा या नहीं होगा. ये वाइले का जनरल फाइंडर है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं.
एक ये वेबसाइट है, इसको जेन बोलते हैं, जनरल ऑथर नेम सर्च। इसमें भी अगर आप कुछ अपना टाइटल या अपना एब्स्ट्रैक्ट वगैरह डालेंगे तो वो उसके हिसाब से आपको लिस्ट ऑफ जर्नल्स दे देगा, राइट। तो इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक पब्लिशर का है, ये अलग अलग पब्लिशर के जो भी आपके काम से रिलेटेड होंगे उसके को मैच करके ये आपको अलग अलग जर्नल्स के नाम दे देगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इसको देख सकते हैं। आयरिस एआई है, ये पहले काफ़ी चलता था, अभी ये इसने शायद अपना चेंज किया है कुछ मॉडल। इसकी जगह पे जो मैं आपको मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए वो है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। एक ये भी है एनसिया। एक जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है आपका कंसेंसस। कंसेंसस आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंसेंसस में मैं ट्राई कर रहा था, अभी आपने देखा जैसे हमने लिखा कुरकुमिन, सर्च लिटरेचर ऑन कुरकुमिन, राइट। तो उसमें क्या है, आप उस पर क्लिक करिए और आप उसको बता दीजिए, तो आपके ये जितने भी जो भी रिलेटेड पेपर्स होंगे ये अपने आप आपको लिख के ये शेयर आपके साथ कर देगा। लिटरेचर रिव्यू के लिए ये एक बहुत अच्छा मेथड है, कैसे आप कर सकते हैं। जैसे आपने लिख दिया कुरकुमिन सर्च लिटरेचर ऑन कुरकुमिन एंड कैंसर, राइट। तो देखते हैं क्या करता है ये। अब देखिए इसने जो है कुरकुमिन और उसके साथ अगर आप कैंसर पे काम कर रहे हैं तो उस पे काम कर रहा है। तो ये इसने काफ़ी सारे जो अलग अलग पेपर्स हैं ये आइडेंटिफाई कर लिए। देखिए कुरकुमिन कैंसर, कुरकुमिन एंड कैंसर की टेक अवे, राइट, कि क्या उसका आउटकम आ रहा है वो भी आपको बता दे रहा है। 1.4 मिलियन रिजल्ट आपको दिखा रहा है ये। एंटी कैंसर मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ कुरकुमिनॉइड्स, राइट। एक्सप्लोरेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कुरकुमिन इन कैंसर थेरेपी। तो सिस्टमिक रिव्यू है, एविडेंस सिंथेसिस भी करके दे रहा है आपको, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो भी आपको सारी चीज़ें ये निकाल के दे रहा है। इसका स्नैपशॉट भी दे दे रहा है, उसका ओवरव्यू दे दे रहा है पूरा, उसका साइटेशन वगैरह डिटेल भी दे दे रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा एक टूल है, ऑनलाइन एआई बेस्ड टूल है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपना लिटरेचर निकालने में। ये साथ में इसकी डीओआई भी दे रहा है, तो जिससे आपको देखने में भी आसानी हो। तो आप ये भी क्रॉस वेरीफाई कर लें कि कहीं कोई भी एआई में मिस्टेक ना हो। तो जैसे आपने इसका डीओआई डाला तो ये आपके पास पेपर आ गया, एक्सप्लोरिंग द कंट्रीब्यूशन कुरकुमिन टू कैंसर थेरेपी, जो आप यहाँ पे इसको देख पा रहे हैं। एक्सप्लोरेशन द कंट्रीब्यूशन कुरकुमिन टू कैंसर थेरेपी, राइट। तो ये एक काफ़ी अच्छा टूल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी इजी इजी टूल भी है। तो ये भी आप बहुत आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि डिसीजन कैसे लें जनरल सिलेक्शन का। तो उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका क्या काम है, कि आपको रैंकिंग देखनी है, इम्पैक्ट फैक्टर देखना है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। बट अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जो जर्नल्स हैं, कई जर्नल्स जिनके बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर हैं, उससे आपका काम मैच नहीं करेगा। तो आप केवल रैंकिंग या इम्पैक्ट फैक्टर देख करके डिसीजन नहीं ले सकते अपने पेपर को सबमिट करने के लिए। उसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि किससे आपका स्कोप मैच करता है। तो सबसे पहले जब आपको अपना कोई भी पेपर सबमिट करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या वो पेपर मेरे स्कोप में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे ये एक एग्जांपल है, हमने एक मनुस्क्रिप्ट तैयार की जिसमें एंटी यूरोलिथियाटिक पोटेंशियल, मतलब कि स्टोन के अगेंस्ट जो एक्टिविटी होती है एक प्लांट का, हिमालयन प्लांट का, उसको हम चेक कर रहे थे। तो अगर हमने देखा, एक जर्नल सेलेक्ट किया हमने, साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ बॉटनी, और हमने देखा कि इसमें इसका स्कोप में क्या लिखा हुआ है कि जो भी पेपर्स हैं केवल साउथ अफ्रीकन जो प्लांट्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं उनसे रिलेटेड पेपर ही सब पब्लिश किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा ये प्लांट क्या लिस्टेड है, और अगर आपने उसका स्कोप देख के उसमें सबमिट किया तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका पेपर जो है उसमें पब्लिश हो जाए, राइट। इस तरीके से आप काफ़ी पेपर जर्नल सही से आइडेंटिफाई करके उसमें भेज सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पेपर्स हैं जो इस तरीके से छपे हैं। और अपनी फाइंडिंग्स को और जगह भी सबमिट करने से बिल्कुल हिचकिए मत। आपको अपनी फाइंडिंग्स, जो अच्छे पेपर्स आपके पब्लिश हो रहे हैं वो आपको आगे बढ़ाने चाहिए। आपको मीडिया हाउसेस को भी आप शेयर करिए ताकि वो छप सकें, और अपने स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करिए कि वो राइटिंग कर सकें। तो ये कुछ यूजी स्टूडेंट्स के पेपर्स हैं जो हमने काफ़ी अच्छे जर्नल्स में पब्लिश किए। तो अगर आप फैकल्टी हैं तो भी आप अपने यूजी स्टूडेंट्स को प्रमोट करिए लिखने के लिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप खुद किसी अच्छे सुपरवाइजर से मिलिए और उनसे बात करिए और अपने आप को इंगेज करिए अच्छा राइटिंग के लिए। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कोलैबोरेशन। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन कोलैबोरेट एज मच एज पॉसिबल। आज की डेट में कोलैबोरेट करना बहुत ईजी है। अगर आप चाहें तो विद इन सेकेंड्स आप किसी भी अच्छे ऑथर को, अपने रिलेटेड ऑथर से आप बात करिए, उसको मेल करिए। इफ़ दे विल एग्री सो यू कैन एस्टैब्लिश योर कोलैबोरेशंस, ओके, एंड देन यू कैन वर्क
ये हमारे कुछ पेपर्स हैं जो हमने अलग अलग तरीके से कोलैबोरेशन में पब्लिश किए हैं, और ये सारे बहुत अच्छे अच्छे जर्नल्स के पेपर हैं, सब मोस्टली हाई इम्पैक्ट जर्नल्स हैं। तो अगर हम देखें कि क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जनरल सिलेक्शन के वक्त, तो आप देखेंगे ऑथर गाइडलाइन, एम एंड स्कोप, पीयर रिव्यू प्रोसेस क्या है, आपका टॉपिक क्या है, जर्नल आपका इंडेक्स होना चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस रेट अच्छा होना चाहिए, और उसका इम्पैक्ट फैक्टर भी ठीक होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है सबमिट करते हुए। क्या क्या टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए, आप जो कैबल्स डायरेक्टरी है पब्लिशिंग अपॉर्चुनिटी की, ये देख सकते हैं ताकि आप प्रेडेटरी जर्नल्स को निकाल पाएँ। एसजेआर देख सकते हैं, अलग अलग जर्नल फाइंडर्स टूल जो मैंने आपको बताया वो यूज़ कर सकते हैं। जनरल साइटेशन रिपोर्ट देख सकते हैं, पबमेड वगैरह से आप सर्च कर सकते हैं, गूगल स्कॉलर से सर्च कर सकते हैं, राइट। जहाँ पे जो इनविटेशन होता है वो मैंने आपको बताया कि जो बड़े जर्नल्स होते हैं जिनके इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह ज़्यादा होते हैं, वो जनरली ऑथर्स से, जो रेप्यूटेड ऑथर्स होते हैं उनसे इनविटेशन बेसिस पे मांगते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये केवल इनविटेशन ओनली जर्नल है। सो इसमें लिखा हुआ है, प्लीज नोट दैट दिस जनरल कमीशन रिव्यू जर्नल्स and does not accept unsolicited article. Okay, so you can only get the invitation only, right? So the most important thing is decision. Whenever you are doing any kind of work, you have to make sure that you are maintaining a very huge amount of discipline. Okay, so discipline is one of the most important things. So this is a very very beautiful picture which shows this is a training of police dogs. When so you can see that all these dogs, एक किटन इनके सामने से जा रहा है और सारे के सारे इनका ये एक टेस्ट है, अगर कोई भी डॉग इसकी ओर आएगा तो दे विल बिकम दे विल बी डिस्क्वालिफाइड, राइट। सो दिस इज देयर test of the discipline. So we have to make sure that we are also in the proper discipline. So what this shows, that instinct control become a reason, reason under control become inspiration, and inspiration under control become realization. So we have to be, whenever you are doing any kind of science, whether you are doing science writing or you are doing your research work, it is very very important to be in a very good amount of discipline, to inculcate discipline inside you, right? And this is the secret, that the power of the mind is like rays of the sun. When they are concentrated, they illuminate. So this is the actual secret. Like whenever you are doing any kind of research work, you have to make sure that you are focusing toward your work. Okay, so if you are not focusing towards your work, then your energy will be distorted. Okay, it will be distracted. And if you are focused toward your work, then definitely you will get success whenever you, whatever you are doing. Okay, so good thing takes time. So you have patience. Okay, if you are submitting in a journal and you are not getting any response for a long time, okay, you can write a mail or you can have patience as well. Okay, so generally you will see that good journals, they take time. Okay, they take good amount of time. Sometime the reviewers also take time. Okay, so अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, महीना 2 महीना 3 महीना लग रहा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो आपको पेशेंस रखना चाहिए, राइट। So with these words, I want to thank you all for listening to me. And if you are having any query, or if you want me to make any specific content on any of the research related topic, you can write me. Okay. So finally, thank you so much. Jai.